Today we will discuss another living beings, that are the coordination in plants. Before this we have discussed coordination in animal. आज जो coordination in plants में अपने स्टडी करेंगे तो we know that plants have no nervous system, plants have no muscles, some characteristics such as movement, rapid response, these characteristics are not performed, are not shown by the plants. So what are the other characteristics which are presented by the plant? That they are living beings, such as reproduction, growth, development, respiration, some types of environmental effect. Then we will learn under the coordination in plants what type of environmental effect are present. Because of them we can determine that they are also a living beings and they are also coordinate with the environment. Then under the coordination of plants we will discuss response, what type of response they show. Such, therefore we can say they are a living beings. Okay, then coordination in plants. Then how we can define what is coordination in plants? Then we can write here as a, we know that plant do not show any rapid response over action. We know that, ये भी अपने को पता है, we know that plants have no nervous system. इसी के कारण उनके पास में कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, इसी के कारण प्लांट्स जो है वो रैपिड रिस्पॉन्स शो करता नहीं है. दे प्लांट्स हैव नो मसल बट plants also shows slow or rapid response toward the environment in environment. So इसको अपने क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बाय द प्लांट्स टुवर्ड environmental change, environmental change or any external effect called stimulus. Suppose when season is going to be change, season change होता है तो कई पत्ते, कई पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो that is also response by the plants toward the environmental effect. environmental effect क्या, सीजन चेंज होता है तो उसमें environmental changes आते हैं और environmental changes के कारण प्लांट्स पत्ता गिरा देता है. ठीक है ना. रूट्स ग्रो टुवर्ड द सॉइल, रूट्स जो है वो सॉइल की ओर आता है.
while the upper part means stem moves upward of the soil, है ना. Similarly, sunflower moves toward the light, light की ओर वो जाना पसंद करता है. So next movement of plants toward the response is called tropism. Tropism के कितने टाइप है आपके पास में? We have described tropism into geotropism, hydrotropism, phototropism and chemotropism. There are two type of tropism, means response of the plants divided under the tropism. Tropism and tropism classified, this response is classified under the tropism and nestism. Then we are discuss parts of or types of the tropism. They are geotropism, hydrotropism, phototropism and chemotropism. Geo means होता है आपका अर्थ. Geo means क्या होता है? अर्थ. इसका मतलब क्या हुआ? रिस्पॉन्स ऑफ पार्ट्स. इसको क्या लिखोगे? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स टुवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म. अब इसमें अर्थ में दो पार्ट होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. ठीक है ना. क्योंकि जो भी ट्रोपिज्म है वो आपका दो टाइप का है. ट्रोपिज्म कितने टाइप हैं? दो टाइप. उसमें अपने दो टाइप कौन कौन से लेते हैं? पॉजिटिव और सेकंड है, फर्स्ट है पॉजिटिव और सेकंड है नेगेटिव. एक पॉजिटिव ट्रोपिज्म है और एक नेगेटिव ट्रोपिज्म. रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म. इसमें जब हम प्लांट्स को देखते हैं तो प्लांट्स में दो पार्ट्स आता है. एक आता है अपर पार्ट ऑफ द अर्थ और एक आता है लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ. प्लांट्स का जो पार्ट ऊपर की ओर रहता है, जैसे स्टेम हो गया, स्टेम से बाकी फिर स्टेम में से ब्रांच आती है, लीव्स आते हैं, तो उसको अपने दे आर द पार्ट ऑफ द स्टेम्स. देयरफॉर वी कैन से स्टेम का जो पार्ट है वो ऊपर है और रूट्स का जो पार्ट है वो नीचे है. हमने क्या किया? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड द अर्थ. अर्थ की ओर जो रिस्पॉन्स करता है उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं. तो अर्थ की ओर, अर्थ में कौन सा पार्ट है? रूट्स है. तो रूट इज शोइंग द पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड स्टेम इज शोइंग नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. यानी जमीन से जो ऊपर की ओर दूर जा रहा है वो नेगेटिव हो गया और जो जमीन की ओर आ रहा है दैट इज ए पॉजिटिव. देन व्हेन यू विल टेक एन एग्जांपल, देन plant parts stem, it shows a negative geotropism, and plant's root, it shows a positive geotropism. Why? Because roots moves toward the earth while the stem moves away from the earth. जो plants का parts है कौन सा? stem. stem किधर जाता है? ऊपर की ओर जाता है, यानी away from the earth. तो stem shows negative geotropism and stem हो गया roots, and roots shows positive geotropism. So effect geotropism क्या है? Effect of the plants due to response of the earth is called geotropism. अब इसमें क्या आता है? हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है? तो इसका हाइड्रोट्रोपिज्म में लिखोगे रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स पार्ट्स. थोड़ा सा ही चेंज. हाइड्रो मीन्स वाटर. रिस्पॉन्स ऑफ plants part toward
toward the water is called हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना, हाइड्रोट्रोपिज्म। अब इसमें आपका हाइड्रोट्रोपिज्म में हमारे पास में प्लांट्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के आते हैं। दो टाइप कौन? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग, बट प्लांट्स में हम रूट और स्टेम की ही बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली इसमें भी आएगा, जो स्टेम का पार्ट है दैट मूव्स अवे फ्रॉम द वाटर। स्टेम का जो पार्ट होता है वो वाटर से दूर रहता है। सिमिलरली द रूट पार्ट्स मूव टुवर्ड द वाटर। रूट पार्ट्स पानी के कांटेक्ट में होता है, इसलिए therefore also that we can say root shows a positive hydrotropism and stem shows a negative hydrotropism। स्टेम ऊपर की ओर आता है, चाहे एक्वेटिक का प्लांट्स हो, एक्वेटिक प्लांट्स हो या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हो। टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन में समतल लैंड में ग्रो होते हैं, वो दोनों में स्टेम शोज है पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, एंड रूट शोज है पॉजिटिव। तो इसको हाइड्रोट्रोपिज्म होता है क्या है? रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टुवर्ड द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। जस्ट इसी ऐसा ही है फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट होता है। फोटो का मीन्स क्या है? फोटो मीन्स लाइट। तो इसका आ जाएगा रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। जैसे सनफ्लावर का अपने लेते हैं ना, तो सनफ्लावर में क्या है कि जिधर की ओर सन रहता है ना, उसका फ्लावर उधर ही रहता है, सन की डायरेक्शन में ही रहता है। तो ये हमारा फोटोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। जनरली नेचर क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपके पास में ये एक डार्क रूम है इस प्रकार से, और यहाँ पर मैंने एक प्लांट्स इसमें लगा दिया पॉट में। प्लांट्स का जो आता है, क्या बोलते हो उसको, जिसमें लगा देते हैं घर में आसपास लगा देते हैं, मिट्टी का आता है, वाटर है, पॉट तो बहुत सारे होते हैं। इसको कौन सा पॉट बोलेंगे? फ्लावर पॉट ले लो, प्लांट पॉट ले लो, चलो फ्लावर मारो बोली। ठीक है, अब इसमें जो ये हमारा इसका पार्ट जो है स्टेम है, इसमें ऐसे पत्ते हैं थोड़े बहुत जो भी हैं, तो ऐसे। तो आप देखो, और इसमें ये पूरा डार्क रूम है। ये हमारा जो रूम है वो क्या है? डार्क रूम। अब यहाँ से मैंने इसमें होल कर दिया, सपोज कीजिए यहाँ से, और यहाँ से लाइट आ रही है, ये सन है, सनलाइट इधर से आता है, SUN सन, और इसकी लाइट यहाँ से रूम में इंटर कर रही है। तो जनरली नेचर क्या होता है? जनरली नेचर है कि स्टेम का पार्ट क्या होता है? स्ट्रेट, बट ये लाइट इधर से आ रहा, तो आप देखोगे कि यदि ऐसा किया जाए तो ये स्टेम का जो पार्ट है ये इधर लाइट की ओर बेंड हो जाता है। ऐसा ये इस प्रकार से बेंड होने लगता है। ये किस के कारण है? ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट। यानी ये आपका जो पार्ट्स है ये लाइट की ओर इंटर करता है। इसको हम क्यों रखते हैं किसमें? फोटोट्रोपिज्म में। दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। तो जो पार्ट, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव को रखोगे, तो जो पार्ट्स लाइट की ओर जा रहा है दैट इज ए पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और जो पार्ट लाइट से दूर जा रहा है दैट इज ए नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अब इसमें पॉजिटिव कौन सा आएगा? स्टेम। स्टेम शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म।
tropism while roots shows negative phototropism, क्योंकि रूट्स जो है ना वो डार्क में जमीन के नीचे जा रहा है, वहां लाइट नहीं है, तो निगेटिव फोटोट्रोपिज्म कौन सो कर रहा है? रूट्स। मान लो कि क्वेश्चन में आ जाता है विच पार्ट ऑफ द प्लांट शोज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, देन आवर आंसर विल बी रूट्स। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शोज ए पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, आवर आंसर इज ए स्टेम एंड या आर अपर पार्ट, स्टेम, लीव्स, व्हाटएवर, स्टेम्स जनरली वी कैन से, क्योंकि ये लाइट की ओर रहता है। उसके बाद आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमो मीन्स केमिकल होता है, जैसे ओवल ट्यूब, ये सब जो डेवलप होते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द केमिकल इफेक्ट, है ना। पीटल्स है और कौन कौन सा उसका पार्ट्स था प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी जनरली दैट इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन, तो इसको क्या लिखेंगे? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का चांस नहीं है। कीमोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स ड्यू टू केमिकल इफेक्ट, ये सभी में हमारे में भी है। केमिकल इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म, ठीक है ना। पीटल और सेपल, SEPAL, है ना। तो ये दो पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के प्लांट्स हैं। फ्लावरिंग ऐसा लिख दोगे, ए फ्लावरिंग प्लांट shows कीमोट्रोपिज्म। इसी के कारण जो है ना वो फ्लावर के बड्स डेवलप होते हैं। तो केमिकल इफेक्ट के कारण जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड द कीमोट्रोपिज्म, ठीक है ना। तो ये 4 टाइप के हमारे ट्रोपिज्म आ जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंटेंट आता है ट्रोपिज्म के बाद, दैट इज ए नेस्टिज्म। ट्रोपिज्म के बाद अगला है नेस्टिज्म, और नेस्टिज्म में वी विल मूव टुवर्ड द नेस्टिज्म इन आवर नेक्स्ट सेशन। Therefore, today you will make a revision of the tropism and what type of external effects take place over a plants, means coordination. We are under the topic of coordination of plants, and that is so by 2 ways, as a tropism and nestism. Then coming session means tomorrow we will discuss with you a nestism. Thank you and have a nice day.